جب اللہ تہجد کی نماز قبول کرتا ہے تو چار بڑی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں نصیب والوں کو ہی نظر آتی ہیں۔ اگر آپ نصیب والے بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں آپ کو چار ایسی نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر یہ چار نشانیاں آپ کو تہجد کی نماز ادا کرتے وقت نظر آتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم آپ پر شامل حال ہے۔ آپ کا اٹھنا، تہجد کی نماز ادا کرنا، عبادت الہی بجا لانا اور اس کی بارگاہ میں سربسجود ہونا اس کو قبول ہے، اس کو پسند ہے، وہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ اللہ والو، بہت سارے لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ بہت ساری میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اپنا گرم بستر چھوڑتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، مصلی بچھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی گوشے میں ان کے یہ خیال ضرور رہتا ہے کہ میں جو نماز تہجد ادا کرتی ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہوتی ہوں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نیند قربان کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتی ہوں، کیا میری یہ نماز تہجد، میری یہ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال دل میں کہیں نہ کہیں ضرور پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ایک ہی سوال بار بار پوچھا ہے کہ ہماری نماز تہجد کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو آج کی یہ ویڈیو میں چار ایسی نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر یہ چار نشانیاں آپ کو نماز تہجد ادا کرتے وقت نظر آتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم آپ کے شامل حال ہے، اور آپ کا اٹھنا اور نماز تہجد ادا کرنا، عبادت الہی بجا لانا اور اس کی بارگاہ میں سربسجود ہونا اس کو قبول ہے، اسے پسند ہے، وہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ تو وہ چار نشانیاں کون سی ہیں جو آپ کو تہجد کی نماز پڑھتے وقت نظر آئیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی نماز اللہ کو پسند ہے؟ یہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا۔ بہت سارے معلوماتی اور آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو ساری زندگی آپ کی بہت زیادہ کام آئے گی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عبادات قبول ہوتی ہیں تو اس کی نشانیاں کیا ہیں، آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اللہ والو، تہجد کی نماز کی قبولیت کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق ملنا۔ اللہ والو، کسی بھی شخص کو نیک کام کرنے کا جو موقع ملتا ہے وہ محض ایک اتفاق نہیں ہوتا اور نہ وہ کوئی اس کا اپنا کمال ہوتا ہے۔ جس بندے کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کا موقع ملتا ہے، تہجد کا موقع ملتا ہے اور نیک اعمال کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور توفیق ہوا کرتی ہے۔ یہ کسی بھی بندے کا اپنا کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، ان لوگوں کو نیک کام کرنے کی راہ دکھاتا ہے اور ان کے لیے نیک کام کرنے میں راہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت خود ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو،
अब देखें, दुनिया में करोड़ों लोग बसते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। कोई कोई है जो अपनी नींदें कुर्बान करता है, तहज्जुद के वक्त उठता है, अल्लाह के सामने सरबसजूद होता है। जब सारा ज़माना सो रहा होता है तो वो अपनी थकावट को भूल के, वो ये नहीं देखता कि मैं थका हुआ हूँ, वो उठता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश करता है। तो अल्लाह वालों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक है और बड़ी निशानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी है। जो लोग नमाज तहज्जुद अदा करते हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि वो खुश नसीब हैं, खुश किस्मत हैं। वो समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि वो अल्लाह के सामने सरबसजूद हों। अल्लाह वालों, सबसे अहम बात जो बेहद ज़रूरी है, जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तौफीक दे नेक अमाल करने की, इबादात की, तहज्जुद की, नमाज की, तो उन लोगों को चाहिए कि अपने रिज़्क़ को, अपनी रोज़ी को पाक कर लें, अपनी कमाई को हलाल रखें, अपनी कमाई को तय्यब ताहिर रखें। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं मस्तजाब दावात बन जाऊं। यानी मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं कोई भी दुआ मांगूं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआ को रद्द ना करें, मेरी दुआओं को कबूल फरमाएं। आज हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि मैं दुआ करूं और मेरी दुआ कबूल हो जाए। मैं तहज्जुद अदा करूं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी तहज्जुद को कबूल फरमाए। मैं दीगर इबादात करूं तो मेरी इबादात अल्लाह की बारगाह में मकबूल हों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादात कबूल हों तो सुनिए, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमाएं, करम नवाजी फरमाएं, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मुस्तजाबे दावात बना दे, मेरी दुआएं कबूल फरमाए, मेरी कोई दुआ रद्द ना हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साद इब्ने अबी वक्कास, अपने खाने को पाक करो। अल्लाह की कसम, जब कोई शख्स हराम का लुकमा पेट में डालता है तो 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका कोई भी अमल कबूल नहीं करता। और फरमाया, साद, जिसका बदन हराम से पला उसका बदला सिवाय जहन्नुम के और कुछ भी नहीं है। तो गौर करें कि आपकी कमाई हलाल है या हराम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, एक वक्त, एक ज़माना ऐसा भी आएगा जिसमें इंसान बिल्कुल बेपरवाह हो जाएगा कि उसकी कमाई हलाल है या हराम है। वो इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं देगा। वो कहेगा कि बस माल आना चाहिए जिस तरफ से भी हो। इस चीज़ की वो बिल्कुल परवाह नहीं करेगा हराम है या हलाल है। तो अल्लाह वालों, तवज्जो करें कि क्या मैं और आप इसमें शामिल तो नहीं हैं? क्या हमारा रब हमसे नाराज तो नहीं है जो हम कमा रहे हैं? पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी ना करें। दूसरी बात, अपनी कमाई को हलाल रखें। तीसरी निशानी तहज्जुद की कबूलियत की, जब आप नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हों तो आपको तहज्जुद अदा करते हुए लज्जत महसूस हो, रूहानियत महसूस हो, आपको दिली सुकून मिले। याद रखें, इबादात में लज्जत, नमाज तहज्जुद में लज्जत हर बंदे को नसीब नहीं होती। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलन नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस तरह मरीज़ को खाना खाने में लज्जत महसूस नहीं होती, आप किसी मरीज़ को मीठी चीज़ खाने को दो तो वो कहता है कि मुझे कड़वी लग रही है, मुझे जायका नहीं आ रहा। तो आप फरमाते हैं कि जैसे किसी मरीज़ को खाना खाते हुए लज्जत महसूस नहीं होती, इसी तरह दुनियादार को इबादत में लज्जत महसूस नहीं होती। जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत हो वहां फिर इबादत में लज्जत नहीं रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस्लाह के लिए क्या खूब दुआ फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह, तू अपना जिक्र, अपनी इबादत, अपना शुक्र,
अच्छी तरह करने में मेरी मदद फरमा, ये दुआ किया करते थे। और बिलखसूस तहज्जुद की नमाज में लज्जत हासिल करना चाहते हैं, रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे दिली सुकून मिले, तो मैं आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान रखती हूँ। आप इस फरमान को सामने रख कर कभी नमाज तहज्जुद अदा तो करें। आपको अगर रूहानियत ना मिले तो कहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, कख दा सवाद न मिश्री अंदर, मैं खंडा भी चक ठिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां हजूर दियां मिठियां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, तीन तरह के लोग ऐसे हैं जिसको देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान करीमी के मुताबिक मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह, वो कौन से खुश नसीब हैं? फरमाया, पहले नंबर पर वो लोग जो नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त करते हैं, दूसरे नंबर पर वो लोग जो जहाद के लिए सफ़ें सीधी करते हैं, तीसरे नंबर पर वो बंदा जो नमाज तहज्जुद के लिए उठता है और नमाज तहज्जुद अदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी इस अदा को देखकर अपनी शान करीमी के मुताबिक मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं। अल्लाह वालों, तीसरी बड़ी निशानी तहज्जुद की कबूलियत की ये है कि आप पाबंदी के साथ नमाज तहज्जुद अदा करें, और किसी दिन किसी मजबूरी की वजह से अगर आपकी तहज्जुद की नमाज रह जाए तो आपको टेंशन हो, आपको परेशानी महसूस हो, आपको अंदर से ऐसे महसूस हो जैसे आज मेरी कोई चीज गुम हो गई है, अंदर ही अंदर आपका ज़मीर आपको आवाजें दे रहा हो और आपको अफसोस हो रहा हो कि आज मेरी तहज्जुद की नमाज रह गई है, तो फिर ऐसे शख्स को मुबारक हो कि अल्लाह को पसंद है कि आप उसकी बारगाह में सर को झुकाएं, नमाज तहज्जुद अदा करें। अल्लाह वालों, ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद पसंद फरमाते हैं। अगर ये निशानियां आप में मौजूद हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, तो फिर आपको मुबारक हो कि आपकी नमाजें, आपकी इबादत, आपका अंदाज रब को पसंद है और रब चाहता है कि आप उसके सामने सरबसजूद हों। चौथी और बड़ी निशानी ये है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ रोज़ाना तहज्जुद की नमाज अदा करने की तौफीक मिलना। ऐसा ना हो कि चंद दिन नमाज पढ़ी, जैसे रमज़ान में, शब मिराज में, शब बरात में हम रात को इबादत में गुजार देते हैं और नमाज पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, इस तरह नहीं। मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप रोज़ाना तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दें। तो ऐसे मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब रोज़ाना पढ़ोगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो अमल बड़ा पसंद है जिसमें मदावमत हो जाए, हो चाहे वो मिकदार में थोड़ा ही हो, यानी वो अमल जो पाबंदी के साथ किया जाए, वो मिकदार में थोड़ा ही क्यों ना हो, यानी कि आप तहज्जुद के 12 नफल नहीं पढ़ सकते, 2 ही पढ़ लें, 4 नफल पढ़ लें, लेकिन पाबंदी के साथ पढ़ें। जिन लोगों को रोज़ाना मुस्तकिल मिजाजी के साथ तहज्जुद की तौफीक मिली हुई है, वो समझ जाएं कि अल्लाह का खसूसी फजलो करम है उन पर, उनका ये अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अल्लाह वालों, आखिर में एक बात ज़रूर आपको कहूँगी कि कबूलियत का हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। वही जानता है किसकी इबादत कबूल है और किसकी इबादत कबूल नहीं है। आपका काम है दस्तक देना। अल्लाह वालों, आप स्कूल में भी जाते हैं, पेपर देते हैं, कभी ना कभी तो पास हो ही जाते हैं ना। आप रोज़ाना हाजिरी लगवाते हैं, अब आपको नहीं पता होता कि आपने पास होना है या फेल होना है। तो अल्लाह वालों, इसी तरह आप अपनी टाइम के साथ हाजिरी देते रहा करें, फिर इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी तो पास होंगे ना, कभी ना कभी तो उसकी रहमत आप पर होगी ना। अल्लाह वालों, अल्लाह को जो अदाएं पसंद हैं उन अदाओं पर अमल करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहद रिज्क से नवाज दे,
آپ کو پریشانیوں سے بچا لے۔ اگر آپ کو تہجد کی ان 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ پورا ہوگا، پھر چاہے وہ بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے ہو، بیٹوں کی نوکریاں ہوں، گھر کے مسائل ہوں، رزق اور کاروبار کی تنگی ہو۔ جیسے ہی آپ اپنے رب سے دعا کریں گے، آپ کا رب آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ نشانیاں نصیب والوں کو نظر آتی ہیں، ہر کسی کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی۔ جب آپ ایک نماز پڑھیں اور دوسری نماز کے لیے آپ کا دل کرے تو آپ کی پچھلی نماز قبول